Hey guys, so another update about the trade that we did in Silver Mini. Uh, Market did a curveball, and that is where our risk management actually helped us. So this update is about there's an important lesson that market is taught in this particular trade to everyone, and that is where our risk management actually helped us. So in our last update, market was doing great, everything was going well, but when the market opened today in the evening in US, silver or precious metals were sold off, right? So we had a stop loss, at around 97,000, 400. I think हमने रखा था 97,000 पे रखा था, and we said that हमने कुछ quantity book कर ली थी ऊपर, right? And we had a stop loss at 97,000, and we said that we're gonna take a stop loss over there and move out. So market came down and it did hit our stop loss. Luckily we had sold some quantity at the top because it was not luck. I would first of all say that, because it was pure risk management. We had planned the trade. uh, we had planned that in case the market comes down, we're not going to take a loss in that case, and that's exactly what happened. This is a rare scenario that happens like this, but happens, I would not say rare. uh, it is not a usual scenario the way market performs, but this kind of प्राइस एक्शन डज हैपन. तो ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको ये दिखाएगी नहीं. यहाँ पे जो सबसे बड़ी लर्निंग है, राइट, हमारे पास ये है कि जब हम ट्रेड ले लेते हैं, एंड मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, तो मैं मान के चलता हूँ कि मार्केट कुछ भी कर सकती है. टिल द पॉइंट आई एम ट्रिग आई हैव नॉट पुल द ट्रिगर, तब तक मेरे को, तब मैं सोच रहा था कि ये मतलब व्हाट इज़ द ट्रेंड एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो. But when the mark I'm in the position and I have a position in a particular script, then in my mind I prepare for every scenario, and that is what a trader should do, right? He should prepare what if the market goes up, what if the market goes against me, एंड हर एक सिनेरियो में उसके पास प्लान होना चाहिए. उसका प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज एक पॉइंट पे तो मुझे भी यही लग रहा था एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट कि यार ये नहीं गिरेगी यार, बट वो गिरी. बट द पॉइंट इज कि अगर ऐसे गिरने पे अगर आप अपना लॉस बचा पा रहे हो, और अगर ऐसे ट्रेड में आप लॉस नहीं ले रहे हो, तो आपका पैसा लॉन्ग टर्म में बन जाएगा. So let's go back, right? Let me show you what happened. So, this is where, our stop loss that we had put in the morning got hit. Me being me and humans as we are, I made a mistake. And usually I don't do it. Call it the pressure of a YouTube video, or call it that my ego came in between. I took small lots, at 98 250, कि लगा यार ये नीचे तो जाएगी नहीं यार, इतना कहाँ जाएगी. दैट इज बॉटम फिशिंग. आई हाईली डू नॉट रिकमेंड टू एनी बडी. कभी मत करो. Markets can go much more down than you and I can think, right? Bottom fishing never works. एक आध बार लकी हो जाएंगे, बॉटम कभी नहीं पकड़ा है. फॉर्च्यून्स हैव बीन लॉस्ट टू पिक बॉटम, और यहाँ पे मेरे को लग रहा है बॉटम पिक करने की मैंने कोशिश करी थी. आप कह सकते हो कि दिस इज माई फर्स्ट वीडियो एंड आई वॉन्ट टू शो केस टू एवरीबडी दैट आई, हे, सबकॉन्शियसली होता है ये, that I want to show you that I have planned the trade well and I will make money. At some point when the market was going down, I took some 3 lot, and luckily उसके बाद मैंने हाथ नहीं लगाया, and then it hit my stop loss, and that is where I said okay, that is great. It has tipped my, it came down. I took my stop loss very easily, and then rightly at maybe at sometime I had 3 lots remaining, the ones that I had taken at 98 250. I said यार ठीक है ये पड़े रहेंगे. फिर मैं कहा 2 लॉट और ले लिए, और मैंने कहा कि यार ये जो लास्ट स्टॉप लॉस है बहुत छोटे अमाउंट से, ये 96 300 वाला, ये मैं ले लूँगा. अगर ये इसको तोड़ती है मैं बिल्कुल बाहर हूँ. आई एम नॉट. एंड आई वॉज लकी दिस स्टॉप लॉस. सो आई टुक दिस ट्रेड एट 90 एट 8:30 के आसपास. Market did come down. So if we look at,
in the next 30 minutes itself actually, in the candle that I took the position, it did come down. इसने लो बनाया 335 का, मेरा 320 पे स्टॉप लॉस, so I was lucky, you know. And this never works, right, usually. अब क्योंकि छोटी पोजीशन है, अब होगा क्या, या तो छोटा प्रॉफिट होगा या छोटा लॉस होगा, बड़ा प्रॉफिट हो नहीं सकता क्योंकि, और बड़ा लॉस 98, बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस है 96,300. सो दिस ट्रेड which could have been a potential big mover of 4, 5, 6% is now in a bucket. मैं तो ऐसे ही देखता हूँ मार्केट को कि मेरे जो ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट हो रहा है या बड़ा लॉस हो रहा है, बड़ा लॉस को रोकने की मेरी कोशिश होती है हमेशा, बिकॉज उसी के लिए मेरे स्टॉप लॉसेज है, सारी प्लानिंग उसी के लिए होती है. छोटा प्रॉफिट छोटा लॉस फर्क नहीं पड़ता, इवेंचुअली आप जब साल भर की बुक बनाओगे तो छोटा प्रॉफिट और छोटा लॉस एक दूसरे को काट के जीरो हो जाएंगे, थोड़ा बहुत कॉस्ट ही मिलेंगी आपको, बिकॉज यूर सो आई हैव नाउ kept my stop loss for small 5 lots at 96,300, and I'll basically get out. And I think market is right now at 750, तो 300-400 पॉइंट का स्टॉप लॉस है. एंड इन केस इट डज दैट, आई थिंक यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और हम कुछ मैक्स हमारा नेट रिस्क था 92,000 बना के. सो एक स्मॉल, आई थिंक आई मेड अ स्मॉल मिस्टेक इन माई लास्ट वीडियो. आई हैड सोल्ड नॉट 10 लॉट्स, आई सोल्ड 7 लॉट्स. तो जो पैसे बने थे, आई थिंक वी मेड लाइक 90,000, वी बुकड अ प्रॉफिट ऑफ 90,895 रुपीज, राइट. एंड वी सेड दैट वी विल पुश आवर स्टॉप लॉस फ्रॉम 96,300 टू 97,000. आज बहुत जल्दी हमने इसका स्टॉप लॉस ऊपर मूव किया था, एंड market took out our 97,000 stop loss, fell down from almost, at one point of time it was around 1 lakh, and such is market, it came down. Luckily we had booked some profit last night because we wanted to fortify our position and said that in whatever case, whatever happens in the market, we will, we had financed our trade. तो अभी क्या है कि अगर ये स्टॉप लॉस भी अब हिट होता है तो नेट मैं 75-80 हज़ार बना के निकलूँगा, और अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत और पैसा बन जाएगा. बट इट्स नॉट गोना बी, अनलेस आई बिल्ड माई पोजिशन अगेन, इट्स इट्स गोना बी लाइक दिस. बट दैट इज हाउ समबडी शुड प्लान हिज ट्रेड. अगर इन ट्रेड्स में, ऐसे ही ट्रेड्स में, इनफैक्ट सिल्वर हैज़ अ नैक of making people make big losses, because जिनके risk management tight नहीं होते हैं उनके ही ऐसी positions में loss होते हैं, right. So that is where when you get an opportunity and you think the market is getting overheated, और अगर आप अपना trade को finance कर सकते हो तो आप बिल्कुल, अगर मैंने कल रात को position book नहीं करी होती तो ये जो छोटा मोटा प्रॉफिट है वो भी चला जाता है, शायद लॉस में आ गया होता मैं, राइट. तो ऑलवेज लुक एट इट कि अगर आप उस छोटी पोजीशन पे, मैंने आई थिंक 600 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लिया था और उसमें रफली 2300 पॉइंट बनाए, तो रफली 1:4 निकाला. और उसमें उसके करने से, उसको बुक करने से एट 4 आवर मेरे को ये पता चल रहा था कि मेरा ओवरऑल जो ट्रेड प्लानिंग है उसमें ये हो जाएगा कि मैं कुछ भी हो जाए मैं लॉस बना के नहीं निकलूंगा. और वर्स्ट केस डिड हैपन राइट नाउ, एंड दैट इज द क्लासिक केस वाई रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट. कि अगर इस केस में देखिए वर्स्ट केस भी हो गया तब भी मैं कुछ पैसे बना के लिख रहा हूँ. आई एम रॉन्ग एज अ ट्रेडर राइट नाउ, बाय द वे. मुझे लग रहा था ट्रेंड ऊपर है शायद और जाएगा. इट डिडंट, एंड इट अभी शायद चला जाए फिर भी, आई डोंट नो. बट अगर अब ये नहीं भी जा रहा है तो मेरा नुकसान नहीं हो रहा है. मैं परसों -1 लाख रुपए के हिसाब से मैंने 1 लाख रुपए का रिस्क लिया था, फिर वहाँ से मैंने इसको फाइनेंस किया, 56,000 का रिस्क बचा था. फिर उसके बाद ये हुआ कि इसने मेरे को प्रॉफिट दे दिया और मैंने कहा कि अब कुछ भी हो जाए तो 92,000 रुपये का लॉस होगा, 92,000 का प्रॉफिट होगा. मैंने इस तरीके से कल रात को पूछी. तो क्विकली व्हेन आई मूव फ्रॉम लाख रुपए का लॉस टू अ 50,000 रुपये का मैक्स लॉस, to a max loss of -92,000, which is basically a profit of 92,000 rupees. I basically financed my worst case scenario as well. तो as a trader अगर आप probabilities में सोचोगे और अपनी सारी scenarios की planning करोगे,
एंड मार्केट गिव्स यू अ कर्व बॉल एंड समटाइम्स इट डज कि हमारा पहला ही ट्रेड है और ये हमारे उसी में सबसे बड़ा लेसन हमें मिल गया है. एंड वेन एवर दैट हैपन्स, राइट, एंड इन यू आर एबल टू गेट विदाउट मेकिंग बिग, इसमें अगर मेरा, अगर इस केस में अगर मैं बड़ा लॉस भी बचा लूँ था, अब बचा लेता हूँ अपना ऐसे ट्रेड्स में, तो लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होगा कि हर ट्रेड में मेरे साथ ऐसा होने वाला है कि मार्केट ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी. कुछ ट्रेड में आई विल ऑल्सो बी वेयर मार्केट ट्रेंड विल कंटिन्यू, कुछ ऐसा भी होगा कभी कभार, राइट, एंड आई विल मेक मनी, राइट, इन दोज केसेस. कई केसेस में आई माइट ऑल्सो गेट वेरी लकी, जहाँ पे मैं प्लान कर रहा था कि यार 1,05,000 जाएगा, 1,15,000 तक जा सकता था सिल्वर. Such scenarios do happen, right, and happens in, might not happen right now. उन केसेस में आई मेक रियली गुड मनी, 10-12%, 15% ऑफ अकाउंट बन जाएगा. बट इन दिस केस इट डिडंट हैपन, सो बी इट, कोई दिक्कत नहीं है. वी the right way to think about what I am trying to say is, once you are in the trade, you will never predict, you will only react, you will plan for scenarios, you will be risk first. आप हमेशा आप अपना रिस्क बचा के चलोगे, और अगर फाइनेंसिंग की सिचुएशन आपको मिल रही है, आप अपना ट्रेड सबसे पहले फाइनेंस करो. दैट्स अबाउट इट. थैंक यू.